السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک بصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں، آپ کے پسر بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام 55 پوائنٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے جلد سے جلد یہ مشکلات کے بادل چھٹیں اور یہ کرونا کی بیماری جو ہے، یہ وائرس جو ہے، یہ ختم ہو، تاکہ سب جو ہے اس بارگاہ میں کاظمین میں جا کے راستے کھلیں، بارڈر کھلیں، ہوائی راستے کھلیں، ایئرپورٹس کھلیں، تاکہ سب جو ہے وہاں پہ جا کے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ 25 رجب روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، غم و اندوہ کا دن ہے، اور وہ دن ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام کے جنازوں کی تاریخ کو سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ آل محمد کے جنازے کس طرح کے جنازے ہیں۔ یہ وہ جنازے ہیں کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ ایک کے بعد ایک جنازہ، اور وہ بھی جنازوں کی دشمنیاں زندگی تک ہوتی ہیں، زندگی میں دشمنی ہوتی ہے، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں اللہ نے مودت اہل بیت کا حکم دیا، اجر رسالت مانگا گیا، وہاں پہ اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم اسلام میں نہیں ملتی۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے زندگی پہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ ہزاروں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، لیکن جس شخصیت کا آج ذکر ہے 25 رجب المرجب، ہم نے ان کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے، کس زمانے میں آپ نے زندگی گزاری، اور کس طریقے سے آپ نے مذہب کو، دین کو، اسلام کو دنیا کے سامنے روشناس کروایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام فرق اسلامی کے اماموں کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام ملتے ہیں، اور باقاعدہ فرمان بھی ملتا ہے اور کہا وہ بھی ملتا ہے کہ اگر وہ سال جو ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزارہا شاگرد کہ جو مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے 1000 سے زیادہ افراد کو دیکھا، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ فکرہ تھا، حدثنی جعفر ابن محمد، میں نے
मुझ से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तो ये फ़ख्र की मंजिल थी। और ज़माना ज़ाहिर है बनी उमैया से बनी अब्बास की तरफ मुंतकिल हो रहा था। तो उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को तबलीग दीन का, इस्लाम की तबलीग का, दीन की तबलीग का, शरीयत के पहुँचाने का सही और बेहतरीन मौका फराहम हुआ। और आपने दीन की तबलीग की, इसलिए मज़हब जाफरी के नाम से मंसूब है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना वो ज़माना है कि आपने कई हाकिमों का ज़माना देखा बनु अब्बास से। और वो ज़माना था कि जिस ज़माने में बनी अब्बास का उरूज था और जो जुल्म व सितम आले मोहम्मद के चाहने वालों पे, आले रसूल पे हो सकते थे, वो उस ज़माने में हुए। और पूरी कोशिश की गई कि नस्ल अहले बैत को, नस्ल रसूल को, सादात बनी फातिमा को दुनिया से मिटा दिया जाए। लेकिन अल्लाह का वादा है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। लोग चाहते हैं कि फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे वो काफिरों पे गिराए गुजरे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सिलसिला नसब आप जानते हैं कि 7वें इमाम हैं और 9वें मासूम हैं। आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपकी वालदा का नाम हमीदा है। जब पहली मर्तबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आपकी वालदा को देखा तो सवाल किया कि आपका क्या नाम है। तो आपने फरमाया मेरा नाम हमीदा है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम चूँकि अपने बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए आपने इनको मुंतखब किया था, तो आपने फरमाया हमीदतुन फ़िद दुनिया व महमूदतुन फ़िल आखिरा। सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हमीदा मुसफ़ा मिनल अदनास, कि हमीदा जो है वो बुराइयों से और अदनास से, नजासतों से, अरजास से महफूज और मसून है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो इमाम है कि जिनके हवाले से जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। नासिख़ तवारीख़ आपके हवाले से लिखी गई, अवालिमुल उलूम में आपके हवाले से कई जिल्दें मुज़य्यन हैं, बिहारुल अनवार में एक बाब आपके हवाले से है, आपकी ज़िंदगी के हवाले से। हालांकि मौला की ज़िंदगी ज़िंदान में गुजरी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने दीन की वो तबलीग की, शरीयत की वो तबलीग की, और जिस तरीके से आपने शरीयत को और दीन को और इस्लाम को पहुँचाया, वो अपनी मिसाल आप है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाम है मूसा, लकब आपका काज़िम है। और उसके अलावा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक लकब नहीं है, कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शराफतिल मुसम्मा, कि अलकाबात की ज़्यादती, अस्मा की ज़्यादती मुसम्मा की शराफत पे, मुलक्कब की शराफत पे दलील बन जाती है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से साबिर आपका लकब है, सालेह आपका लकब है, जाहिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से एक लकब है, नफ्स ज़किया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से एक लकब है, ज़ैनुल मुज्तहिदीन आपके अलकाबात में से है, काज़िम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से मशहूर तरीन लकब काज़िम है, और अब्द सालेह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलकाबात में से। और एक बहुत बड़ा लकब कि जो बीमारियों में, परेशानियों में और इज़्तिरार की हालत में इंसान को याद आता है, वो है बाबुल हवाइज, हाजात का दरवाज़ा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हाजात के दरवाज़े के नाम से जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो मरकज़ दीन है कि जिनके बारगाह में कोई हाजतमंद आ जाए तो उसकी हाजत रद्द नहीं होती। बीमारी के हवाले से तमाम मुत्तफ़क़ हैं, और एक नहीं कई अफराद ने अपने किताबों में लिखा है, बल्कि दुआए तवस्सुल दीगर में आप जाके देख लें मफाती में, कि बीमारी की सूरत में जिस इमाम से रुजू किया जाता है और जिस इमाम से अल्लाह की बारगाह में वसीला करार दिया जाता है और शिफा तलब की जाती है, वो बाबुल हवाइज हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। और नामुमकिन है कि कोई इनके वसीले से दुआ मांगे और उसकी दुआ रद्द हो जाए। दुआ रद्द नहीं होती। दुआओं का वसीला, इबादतों का वसीला, करामतों का वसीला, इनायात का वसीला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। जो सफ़री मुश्किलात में मुब्तला है और जो सफ़र की प्रॉब्लम्स में है,
या सफ़र के हालात में उनको दुश्वारी है, उनका वसीला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ज़ामिन आहू आपका लक़ब है। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सफ़री तमाम मुश्किलात का हल, या किसी को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है या कुछ है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, तमाम मुश्किलात का हल हो जाएगा। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम रिज़्क़ का ताल्लुक़ इस इमाम के साथ है, जो रिज़्क़ के तालिब हैं और तलब करते हैं अल्लाह की बारगाह में, जिन्होंने रिज़्क़ का सवाल किया हुआ है और रिज़्क़ की दरख्वास्त है, तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से रुजू करें। इबादत चाहते हैं, कसरत इबादत के तलबकार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में आपकी इबादतें रंग लेके आएँ और आपकी इबादतें मुमताज़ बने, तो इबादतों का ताल्लुक़ सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ है, कि जिन्होंने सहीफ़ा कामिला सज्जादिया हमें अता की, और मौला की ये सहीफ़ा सबके लिए एक नेमत और रहमत की मानंद है कि मौला ने दुआओं का तरीका बताया। इसीलिए दुआए अबू हमज़ा सोमाली इमाम सज्जाद की वो दुआ है कि जो माह मुबारक रमज़ान की रातों में पढ़ी जाती है। और उसी तरह से दुआए हफ्तों में सहीफ़ा सज्जादिया दुआ या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारे, ये वो दुआ है कि जो तमाम परेशानियों में, तमाम मुश्किलात में, तमाम इंसान की जब टेंशन चारों तरफ से आ जाए, तो उसमें ये दुआएं सहीफ़ा सज्जादिया, जिसके लिए उलमा ने ताकीद की है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि ये जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसमें इस दुआ के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में तवस्सुल करें। तो हर इमाम का ताल्लुक़ एक चीज़ से है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब है कि आपसे बीमारियों की ला इलाज बीमार हो जाए तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानियों को दूर करता है और मुश्किलात को आसान करता है। इमाम की कुनियतों में से, इमाम मूसा काज़िम की कुनियतों में से अबुल हसन अल अव्वल आपकी कुनियत है, अबुल हसन अल माजी आपकी कुनियत है, अबू इब्राहिम आपकी कुनियत है, अबू अली आपकी कुनियत है, अबू इस्माइल आपकी कुनियतों में से है, और अबुल कासिम आपकी कुनियतों में से है। कसीरुल औलाद हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और जितने काज़मी सादात हैं उनको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से आपके बड़े बेटे इब्राहिम है, और ये सिलसिला नसब जो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से काज़मी सादात का, और उसके बाद आगे सिलसिला नसब जो है वो आप सब जानते हैं कि रिजवी और नकवी बाकायदा। लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, वालदा का मैंने आपको बता दिया कौन है। आपके अलकाबात में से काजिम आपका जो लकब है वो इस वजह से है कि जैसे कहा जाता है काजिमुल गैज़, गुस्से को बर्दाश्त, वल काजिमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास, कुरान है कि जो गैज़ को बर्दाश्त करते हैं और गुस्से को और जुल्म को बर्दाश्त करते हैं और लोगों को बख्श देते हैं, और अफ को जो है वो पीछा करते हैं, बद्दुआ नहीं करते। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए। आपकी अंगुश्तरी जो आपके हाथ में थी उसका एक लफ्ज़ उस पर, जुमला उस पर कंधा था, और वो था हस्बी अल्लाह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जितने जुल्म इमाम पे आते रहे, जिस तरह करबला मुअल्ला में जुल्म बढ़ते जा रहे थे, तस्बीह व तहलील व तकदीस की आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी, शिकवा नहीं आया बल्कि शुक्र आया। यहाँ पे ज़रा किसी की बात कोई परेशानी आ जाए तो वो शिकायतें करनी शुरू कर देता है, वो एतराज़ात करना शुरू कर देता है। लेकिन ये आले मोहम्मद का घराना है। रावी बयान करता है कि मैंने शब आशूर देखा कि आले मोहम्मद के खैमों से इस तरीके से तस्बीह व तहलील व तकदीस की आवाज़ आ रही थी कि जिस तरीके से शहद की मक्खियों के छत्तों के पास से उनके भिनभिनाने की आवाज़ आती है, उस तरह से आवाज़ आ रही थी आले मोहम्मद के घराने से। तो ये आले मोहम्मद का घराना, ये आले मोहम्मद की वो ज़वात मुक़द्दसा है कि जिन्होंने हर हाल में तस्बीह का दर्स दिया, तहलील का दर्स दिया, तकदीस का दर्स दिया। नेमतों में मैंने जैसे कि हमेशा अर्ज़ करता रहता हूँ कि नेमतों में शुक्र करना और बात है, मुसीबतों में शुक्र करना और बात है, इनायात पे शुक्र करना और बात है, घरों को लुटवा के शुक्र करना और बात है, आम घर में रह के 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ना और बात है, लेकिन 14 साल जिंदान में रह के, कैद में रह के ताज़ियाने खाते हुए शुक्र करना, सजदा शुक्र अदा करना, ये और बात है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपकी सीरत के लिए मशहूर ज़माना किताब इरशाद शेख मुफीद में शेख मुफीद आला मकामहू इरशाद फरमाते हैं कि आबद अहले ज़माने ही, अपने ज़माने में आबिद तरीन फ़र्द का नाम
इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, और इस तरह से इबादत करते थे कि रात को आप इबादत परवरदिगार में मशगूल हो जाया करते थे। वही युसल्लीहा बिसलात सुबह, नमाज़ पे नमाज आपकी अदा होती थी, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त आ जाता था, और फिर फजर के वक्त आप नमाज शुरू करते थे और ताकीबात नमाज में यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता था, और उसके बाद फिर सूरज तुलू होने के बाद आप इबादत में मसरूफ़ रहते थे यहाँ तक कि ज़वाले आफ्ताब का वक्त आ जाता था। और किसी ने भी इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में हंसते हुए उस तरह से नहीं देखा जैसे लोग हंसते हैं। फ़काना इज़ा क़रअ यहज़न, जब आप कुरान की किरात करते थे तो आप पे हुज़्न तारी हो जाता था, जब आप तिलावत कुरान करते थे तो लोग उनकी आवाज़ सुन के रोना शुरू कर देते थे, और यहाँ तक मिलता है वकाना यबकी मिन खशियतिल्लाह, खौफ खुदा से आपके अश्क जो है वो जारी हो जाया करते थे। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि इस तरह से रोते थे कि जब आप गिरिया करते थे आपकी रीश मुबारक अश्कों से तर हो जाया करती थी। जिंदान में है तो सजदे शुक्र में, तशद्दुद हो रहा है तो सजदे शुक्र में, गिरफ्तारी इमाम की गई, वो भी इमाम को हालत नमाज में गिरफ्तार किया गया। यानी हर हालत में इमाम ने इबादत परवरदिगार को एक लम्हे के लिए तर्क नहीं किया और दर्स दिया कि तुम आज़ाद हो, तुम दुनिया में हर तरीके से आज़ादी महसूस करते हो। मैं जब कैद हो के अल्लाह की बारगाह में तवस्सुल व तज़र्रुर कर सकता हूँ, तुम तो आज़ाद हो, तुम्हें तो बदरजे औला चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में तवस्सुल करो और तज़र्रुर करो और अल्लाह की बारगाह में इबादतों को पेशा बजा लाओ, अपने ज़िंदगी में इबादतों को अपनाओ, दुआओं का सहारा लो ताकि तुम अल्लाह की रहमतों से दूर ना हो जाओ। तो अज़ान मोहतरम, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि एक शख्स था जो इमाम मूसा कादिम बनु अब्बास में से, जो इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम को ना सदा कहा करता था, और बल्कि मिलता है कि उसका ताल्लुक जो है वो आगे तक चला जाता है कि वो इमाम मूसा कादिम को उठते बैठते ना सदा बोला करता था और इमाम की शान में गुस्ताखी किया करता था। खलीफा का बेटा था, उनकी नस्ल से था, कहते वो ना सजा बोला करता था। तो जब ये सूरत हाल हुई कि इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, 7वें इमाम का ज़माना है, तो चंद दिन उसको नहीं देखा मौला ने कि वो नहीं आया। तो वही आप जानते हैं जो इनके जद्दे अमजद ने किया, जब वो औरत कूड़ा डाला करती थी तो आप ने जब पता चला चंद दिन नहीं आई तो पता चला बीमार है, आप उसकी इयादत के लिए गए और आपकी इयादत का असर ये हुआ कि वो मुनक़लिब हो गई। उसी तरह से जब चंद दिन ये नहीं आया और इसने इमाम को नासज़ा जुमलात नहीं बोले तो इमाम खुद चल के जाते हैं उसके घर में। जब उसने देखा तो इमाम फरमाते हैं कि तू परेशान लगता है, तू बीमार लगता है, मैं तेरी परेशानी को दूर कर देता हूँ। तूने किसका कर्जा अदा करना है, मैं तेरा पैसे अदा कर देता हूँ। तुझे घर में माली मुश्किलात हैं, तेरे घर में राशन नहीं है, मैं तेरे घर में राशन डलवा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो एक शायर का शेर याद आता है, दोस्तान रा कुजा कोनी महरूम, तू के बाद दुश्मना हम नजरदारी, कि मौला आप अपने चाहने वालों को कैसे भूल सकते हैं, आप तो दुश्मनों पे निगाह करम करते हैं, आप तो दुश्मनों पे आपकी निगाह करम है, तो आप अपने चाहने वालों को, अपने आशिकों को मौला आप कैसे भूल सकते हैं। आपकी निगाह करीमाना, आपकी निगाह लतीफ़ाना हमेशा हर शख्स पे है, जो आपके दर पे आया वो पा गया और उसको मिल गया इनकी दरबार, इनकी बारगाह से। ज़वाल वक्त शम्स के वक्त जो है इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की एक तस्बीह होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राहत इंदल मौत वल अफ़वा इंदल हिसाब। ये इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम तस्बीह का, और कसरत से आप जो है ये जुमले कहा करते थे। रवायात में मौजूद है, शेख मुफीद ने लिखा, नासिख तवारीख में दर्ज है, और उसके अलावा तमाम कुतुब में मुंतहल अमाल तक में कि इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम जब सजदे में जाया करते थे तो आपके गिरिए की आवाज़ जो है मदीने में गूंजा करती थी और सब समझ जाया करते थे इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम सजदे में है। शागिर्द इमाम ने तरबियत की है कि पहले शागिर्द इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की बारगाह के तरबियत शुदा, जिनका नाम है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आपके तमाम बेटे आपके शागिर्द हैं, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो है जिनको आलिम आले मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये जुमला कहूँगा आप हज़रात के सामने, जिसका बेटा आलिम हो तो वो बाप किस मंजिल पे होगा, जिसका बेटा ज़ामिन आहू हो तो उसका बाप जो है वो हकीकत में बाबुल हवाइज तो होना ही चाहिए। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं
کہ ایک شخص ہے اور وہ امام کی بارگاہ میں بیٹھا. کشف الغمہ میں روایت درج ہے کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں بیٹھا ہے اور مولا سے اس نے سوال کیا کہ اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ امام ہیں اور مولا امام کی علامتیں کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا امام کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ امام جو کچھ تم گھروں میں چھپا کے آتے ہو امام اس کی خبر تم کو دے دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور دینی چاہیے. امام جانتا ہے کہ تم نے کیا مخفی کیا ہے اور اللہ کے اذن سے امام مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور فرمایا کہ امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام تمام لغات کا, کشف الغمہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں, کہ امام تمام لغات کا جاننے والا ہے, تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہے, تمام زبانیں امام کو آتی ہیں. بھئی یہ جملہ کہنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ امام ہر زبان کا عالم ہوتا ہے, ہر زبان اس کو پتہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک نے امام سے توسل کرنا ہے. اردو زبان والا اردو میں بول رہا ہے, عربی والا عربی میں بول رہا ہے, فارسی زبان والا, سرائکی والا, پشتو والا, سندھی والا, بنگلہ دیشی زبان, گجراتی, سواحلی, مدراسی, ہر زبان میں جو انسان کلام کرتا ہے تو امام جو ہے اس زبان کا عالم ہوتا ہے کہ تاکہ ایک کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ الگ ہے. دنیا کے رئیس رؤسا الگ ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھنے کے لیے مترجم کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن امام اس ہستی کا نام ہے, امام ان ذوات مقدس کا نام ہے کہ جن کو مترجم کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ امام خود زبان کو جانتے ہیں, ہر زبان کے عالم ہیں. عارفن پہ اہل لغاتہم, تمام لغات کو امام جاننے والے ہیں. بس مولا نے یہ جملہ کہا ہے. کشف الغمہ والے لکھتے ہیں فوراً ایک خراسان کا رہنے والا ایک شخص مولا کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس نے عربی زبان میں مولا سے کلام کرنا شروع کیا. وہ عربی میں اس نے جب سوالات مکمل کیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فارسی زبان میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا اور مکمل فارسی زبان میں, خراسانی زبان میں امام اس کے سوالوں کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. اور مولا نے جواب دیا. جب جوابات ختم ہو گئے تو وہ کہتا مولا میں نے تو اس لیے عربی میں آپ سے کلام کیا تھا کہ شاید فارسی آپ کو نہ آتی ہو یا آپ فارسی نہ سمجھ سکے ہوں. تو مولا نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ فارسی ہم نہ سمجھ سکیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم نہ سمجھ سکیں. اور مولا نے کہا یہ سن لے کہ جو میں نے فارسی میں کلام کیا, کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے فارسی تیری زبان سے زیادہ اچھی بولی ہے؟ کہا مولا خدا کی قسم ہم اہل خراسان والوں کی فارسی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جتنا آپ کا لہجہ فارسی والا ہے, جتنا آپ کا خراسانی لہجہ ہے. تو اس کے بعد مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نا کو ہم سے ہٹا دو, جب پوچھا کرو. اسی لیے ان کے جد امجد نے یہ جملہ کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو, میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اور مولا کا یہ جملہ ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نا کو ہم سے ہٹا دیا کرو, جب سوال کیا کرو تو اس میں نا شامل نہ کیا کرو. نا وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس عدم موجود ہو. تمہارا نہ جاننا, میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, ہمارا نہ جاننا ہماری جہالت کی دلیل بنتا ہے, ہمارا نہ جاننا ہمارے جاہل ہونے کی دلیل بنتا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, کہ اللہ جب تمہیں دنیا میں لے کے آیا تو تم جاہل تھے, لا تعلمون کی منزل پہ تھے. اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. آنکھ عطا کی, کان عطا کیے, زبانیں عطا کی, یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو عطا کیا تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنے. آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, کان دیے سننے کے لیے, سمیع اور بصیر بنا کے اللہ نے انسان کو بھیجا, سننے والا اور دیکھنے والا. مولا فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ وہ جملہ یہ ہے کہ ہمارا نہ جاننا ہماری جہالت کی دلیل بنتا ہے کہ ہم جاہل ہیں, ہمیں اس لیے نہیں آتا. لیکن امام کا نہ جاننا, امام اگر یہ کہیں میں نہیں جانتا تو یہ نعوذ باللہ من ذالک جہالت کی دلیل نہیں بلکہ عدم کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں.
जिसको इमाम नहीं जानते। इमाम का ना जानना अदम वजूद शय पे दलालत बनता है। तो इमाम ने कहा हमारे साथ ना लगाया करो। फिर इमाम ने फरमाया ये तो इंसानों की ज़बान है, मैं फ़कत इंसानों का इमाम नहीं हूँ। मौला फरमाते जिन्नात की ज़बान का मैं आलिम हूँ। उसके बाद फरमाया चूंटियों की ज़बान, और कई रिवायात में इससे मिलती जुलती मौला का फरामीन मिलते हैं कि चूंटियों की ज़बान। और उसके बाद ज़ाहिर है हज़रत सुलेमान जो है वो चूंटियों की ज़बान समझ सकते हैं। तो परवरदिगार आलम ने जिनको ज़मीन का हाकिम बनाया, बादशाहत अता की, उनको चूंटियों की ज़बान का इल्म अता किया। तो जो कायनात का वारिस बन के आए वो चूंटियों की, हैवानात की, चरिंद की, परिंद की तमाम ज़बानों के आलिम हैं और सब जानते हैं। ज़ाहिर है सब ने उनसे तवस्सुलात भी करने हैं, तज़र्रुआत भी करने हैं और उनकी बारगाह में अपने को पेश भी करना है। तो तमाम ज़बानों का आलिम होना इनके लिए ज़रूरी है और लाजमी है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ये फर्जंद हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के। काफ़ी में और उसके अलावा तवाले में और कई किताबों में मौजूद है कि इब्राहीम कहते हैं कि मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास बैठा था कि मैंने देखा एक नसरानी ईसाई जो है वहाँ पे आया और आके इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके कहता है कि मैं ईसाई हूँ, मैंने 30 साल अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा आलिम अता फरमा कि जो रूए ज़मीन पे यकता हो, जिसकी मिसल कोई ना हो, जिस जैसा कोई ना हो, जो इल्म में, अमल में, इबादत में, तकवे में अपनी मिसाल आप रखता हो। ऐ अल्लाह मुझे उससे मुलाकात करवा दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मैं आपकी खिदमत में आया। और कहते हैं सबसे पहले मुझे इल्म हुआ कि दमिश्क की पहाड़ियों पे एक बहुत बड़ा शख्स है कि जो बहुत बड़ा आलिम भी है, बहुत बड़ा आबिद भी है और बहुत बड़ा साहिब नज़र है, जो देख के अहवाल को बता देता है और गयूब को जानता है और बता देता है कि क्या होने वाला है, इल्म नुजूम का माहिर है। कहते हैं मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उससे सवाल किया, सलाम किया, और जब मैंने उससे सलाम किया तो उसने कहा कि क्या बात है। कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे आलिम तरीन के पास पहुंचा दे। तो उसने कहा मैं आलिम तरीन नहीं हूँ और ना मैं ही समझदार हूँ, इतना मुझसे बड़ा भी मौजूद है। कहा कि इतना तो मैं भी जानता हूँ। कहा सुन, अगर तू ईसाइयों के बारे में मालूमात जानना चाहता है तो रूए ज़मीन पे जितना मैं ईसाइयत को जानता हूँ इतना कोई नहीं जानता। अगर तू यहूदियत का तालिब है तो इब्ने शर्जील सामरी जो है वो यहूदियत का बहुत बड़ा माहिर है, यहूदियत में उसकी मिसाल कोई नहीं है। हाँ, अगर तू तौरात चाहता है, ज़बूर चाहता है, इंजील चाहता है, कुरान चाहता है, सोहफ़ इब्राहीम चाहता है, सोहफ़ मूसा चाहता है, सोहफ़ दाऊद चाहता है, सोहफ़ नूह चाहता है, और उसके अलावा हज़रत हूद पे नाजिल होने वाले सहीफ़ों का इल्म चाहता है, तमाम आसमानी किताबों का इल्म चाहता है, ज़मीनों का इल्म चाहता है, मा कान व मा यकून का इल्म चाहता है, तो वो फ़कत एक शख्सियत है, एक शख्सियत है जो यसरब में रहती है। उनके पास चला जा और उनके पास जाके उनसे पूछ ले जो तू पूछना चाहता है, जो तू मालूम करना चाहता है, जो तू जानना चाहता है, वो उससे बड़ा रूए ज़मीन पे कोई नहीं है। और उस दिन के बाद आलिम आले मोहम्मद इमाम मूसा काज़िम को भी कहा जाने लगा था, कहा कि रूए ज़मीन पे उनसे बड़ा कोई नहीं है। कहा कि वो कौन है? कहा वो मूसा इब्न जाफ़र है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे। सुन ले, उनके पास पहुंच जा, तेरे इल्म में इजाफा होगा, तेरी 30 साल की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। जा वहां पे जा और उनकी बारगाह में अपने उनकी कदमों पे अपने सर को रख दे और जाके उनकी चौखट को चूम ले। वो हस्ती वो है। भाई ये जुमला कहना था। उसके बाद वो कहता है कि सुन, अगर कहा कि मैं थकावट नहीं होती मुझे सफर से, मैं जाना चाहता हूं, कहा थकावट होती हो या ना होती हो, जा सकता हो या ना जा सकता हो, जिस तरीके से हो, अगर तू अपनी दुआ कबूल करवाना चाहता है तो उनकी बारगाह में पहुंच जा। अगर ठीक है तो चल के चला जा, और अगर ठीक नहीं है तो बैठ के चला जा, और अगर बैठ के नहीं जा सकता तो जिस तरीके से मरीज को गाड़ियों में बिठा के लेके जाया जाता है उस तरीके से हाथ वाली किसी को अजीर कर कि वो तुझे वहां पे ले जाए। और अगर फिर भी नहीं जा सकता तो जिस तरीके से जमीन गिर अफराद मुंह के बल चलते हैं और चला नहीं जाता, उस तरीके से चल के पहुंच जा, तेरी दुआ कबूल हो गई है।
कहते हैं कि ये जुमला कहना था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने। तो इब्राहीम कहते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मेरे पिदर बुजुर्गान मुस्कुराए और आपने फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो उसने कहा मुझे ये बताइए, जहां और सवालात किए, कहता मुझे ये बताइए, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये क्या है, ये किसके बारे में है? तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुन, ये तफसीर है। हामीम से मुराद, अल्लाह अकबर, क्या जुमला फरमाया कि हामीम से मुराद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब किताब दाऊद है। और फिर आपने फरमाया कि किताब मुबीन जो है अली इब्न अबी तालिब है और लैलत मुबारका से मुराद हमारी दादी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते फ़ीहा यफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि तमाम की परेशानी, तमाम अम्र हकीम जो है इस रात में, कहा कि जो कुछ भी जिसको फैज़ मिलता है वो हमारी दादी के ज़रिए मिलता है। इनके घर से फैज़ जारी होता है, जारी व तारी व सारी होता है कि जो पूरे आलम में हर एक को पहुंचता है। उसके बाद जब ये जुमला कहना था, उसके बाद फिर उसने कुछ सवालात किए। अब सवालात करने के बाद इमाम फरमाते हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा एक सवाल मैं तुझसे कर सकता हूँ? मौला ने कहा ये बता हज़रत ईसा की नानी का क्या नाम था, और ये बता हज़रत ईसा की दादी का क्या नाम था। फिर मौला ने ये फरमाया वो कौन सी नहर थी जिसके किनारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। फिर मौला ने इरशाद फरमाया मुझे ये बता ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस मंजिल पे फाइज थे और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद जो है वो किस तरीके से हुई, हज़रत मरियम कौन सी नहर के किनारे गई, किस जगह पे ये नहर मौजूद है। तो वो फ़ौरन खामोश हो जाता है कि आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। इमाम ने फरमाया नानी का नाम बताया, आपने दादी का नाम बताया, और उसके बाद आप फरमाते हैं वो नहर जो है वो नहर फुरात है कि जिसके किनारे जो है वो दरख्त, जो खुरमा का दरख्त मौजूद था, वहाँ पे हज़रत ईसा की विलादत हुई। और उसके बाद उसने कहा कि ये बताएं मेरी वालिदा का नाम सिरियानी ज़बान में क्या है, अरबी ज़बान में क्या है। तो जब उसने अपनी वालिदा का नाम पूछा तो इमाम ने फरमाया तेरी वालिदा का नाम अरबी में सिरियानी ज़बान में अनकालिया है, और तेरी दादी का नाम अनकोरिया है, तेरी माँ का नाम अरबी ज़बान में हिबा है, और तेरे बाप का नाम अरबी ज़बान में अब्दुल मसीह है। और फिर फरमाया तेरे दादा का नाम जो है वो जिब्राइल है, लेकिन मौला फरमाते हैं अब्दुल मसीह का अब्द नहीं होता, ये हकीकत में अब्दुल्ला है। और मौला ने फरमाया तेरा दादा बड़ा नेक इंसान था कि जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में शहीद हुआ और उसने शहादत का दर्जा पाया। ये हैरान और परेशान बैठा है ईसाई, ये मौला बताते जा रहे हैं। और मौला ने फरमाया तेरा बाप जो था अब्दुल मसीह और तेरा दादा जिसका नाम था जिब्राइल। और उसके बाद मौला ने फरमाया सुन, तेरा दादा जो था वो भी एक नेक इंसान था, और हकीकत में वो अब्दुल रहमान था कि जो जिब्राइल के नाम से मौसूम था। और फरमाया वो शहादत का दर्जा उसको मिला। और फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तेरा नाम अब्दुल सलीब है। अभी ये जुमला कहना था, अभी तक ना उसने नाम बताया था अपना। मौला कहते तेरा नाम अब्दुल सलीब है। जब ये जुमला मौला ने कहा कि तेरा नाम अब्दुल सलीब है तो फौरन हाथों को जोड़ के कहता है आप मेरा नाम क्या तजवीज़ करेंगे? मेरा नाम अब्दुल सलीब मेरे बाप ने रखा था, आप मेरा नाम क्या रखेंगे? तो इमाम फरमाते हैं मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखता हूं, मैं तुझे अब्दुल्ला के नाम से मौसूम करता हूं, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला है। और मौला ने कहा जा यहाँ पे मदीने में एक ईसाई है उसको अपना दोस्त बना ले और उसके साथ ज़िंदगी गुजार। मैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तेरे माहाना खर्चे का जिम्मेदार हूँ, तेरी परेशानियों को मैं दूर करूँगा, तेरे लिए घर का इंतज़ाम मैं करूँगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो ताज़ा मुस्लिम है, नौ मुस्लिम है, उसके लिए तो इमाम इस कदर फराख दिली कर रहे हैं, तो जो आशिक मौला हो, जो आशिक इमाम हो, उसको इमाम किस तरीके से भुला सकते हैं, किस तरीके से उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए और पुकारने का सलीका आना चाहिए। इस बारगाह से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती है कि जिनके मुनाजरात भी बहुत मशहूर हैं और जिनके बारे में मिलता है कि जितनी अजियत
हाकिम वक्त की तरफ से, हारून की तरफ से इमाम को पहुंची है, उसकी मिसाल और नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। इतना जुल्म इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे हुआ, लेकिन ये जुल्म की वजह क्या थी? कहते हैं ना कि वल जाहिलून li अहलिल इल्म आदाउ, जुहला अहले इल्म के दुश्मन हो जाते हैं। जहां इंसान नहीं जानता वहां पे दुश्मनी दिखाता है। चूंकि इमाम इल्म लदुन्नी के मालिक, इल्म अताई के मालिक, और वहां पे ज़ाहिर है जहालत ही जहालत, इमाम के पास नूर ही नूर, करामते ही करामते, तो वहां पे चूंकि जहालत का मजमुआ था, इसलिए जुल्म बढ़ता चला गया और दुश्मनी बढ़ती चली गई और कदम कदम पे इमाम को अजियतें दी गई। मिलता है कि हारून एक दिन शिकार के लिए जाता है, तो अपने सफेद रंग के बाज को इसने छोड़ा। बाज हवाओं में चला गया, लेकिन शाम तक बाज वापस नहीं आया। अगला इंतजार करता रहा, लश्कर इंतजार करता रहा, लेकिन बाज वापस नहीं आया। तो कहता है कि जब तक बाज वापस नहीं आएगा मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। फौरन जो है उसके लिए खैमा लगा दिया गया। लश्करी खड़े हो गए, कोई शर्क की तरफ, कोई गर्ब की तरफ बाज को ढूंढने चले गए, लेकिन बाज का सुराग नहीं मिला। अगले दिन जब बाज वापस आया तो सबने क्या देखा कि बाज के पंजे में एक मछली नुमा, एक बालिश से छोटा जो है वो एक हैवान है जो मछली की शक्ल में है, और उसके बदन से उसके जो परों की जगह यानी हाथ और पांव की तरह उसके निशान है कि जहां से ऐसी रोशनी निकल रही है कि जो आंखों को खीरा करती है। फौरन उसने मजमे को जमा किया, उलमा और दानिशमंदान को बुलाया कि मुझे बताइए ये क्या है, ये कौन सा हैवान है, ये कौन सा जानवर है कि जिसकी शक्ल मछलियों जैसी है और जिसके बदन से ऐसी रोशनी निकल रही है, उन जगहों से ऐसी रोशनी निकल रही है कि जो हर जगह पे ऐसी रोशनी मैंने नहीं देखी। ये कैसी रोशनी है? बस ये जुमला कहना था। सब ने बैक जबान होके कहा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता ये कैसी रोशनी है, ये कैसा हैवान है, ये कौन मछली है, क्या है, हमें नहीं पता। भाई ये जुमला कहना था। बीच में एक मुनाफिक बैठा था, उसने कहा कि ये बेहतरीन मौका है। इमाम मूसा काज़िम जिनको शिया ये कहते हैं कि वो हर ज़बान को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, हर शय को जानते हैं, उनको नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करने का मौका है। उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, और वो हकीकत में वो भी नहीं जानते होंगे, तो ये एक इंसल्ट होगी और हम खुश भी होंगे। और उस मौके पे उसने ये जुमला कहा कि ये शीयत के लिए ये एक बहुत तबाही का सबब बनेगा। ज़ाहिर है उनके चाहने वाले भी साथ होंगे, असहाब व आवान भी साथ होंगे, तो ये परेशानी उनके लिए उनके इज़्मिहलाल का मुज़महिल होने का सबब बनेगी और उनके ख़त्म होने का सबब बनेगी। आप उनको बुलाइए। फौरन हारून कहता है कि बात तो तुमने सही की है कि जवाब तो वो भी नहीं दे पाएंगे, हालांकि वो ये दावा करते हैं कि हम जानते हैं। फौरन इसने पैगाम भेजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम औलाद के साथ और अपने अंसार और असहाब के साथ। जब उस पे सामने पहुंचे हैं और उस दरबार में आए, तो दरबार में पहुंचने के बाद हारून फौरन कहता है कि इब्ने अम्मा आप कैसे हैं? मैं आपके लिए दीदार का मुंतज़िर था और आपके लिए काफ़ी अरसा हो चुका था, मैं आपकी अहवाल पुरसी करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू कहाँ और मेरा दीदार कहाँ, तू कहाँ और मेरा इंतज़ार कहाँ, तू कहाँ और मेरी याद कहाँ। हाँ मैं तुझे बताना चाहता हूँ हारून, सुन, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक दरिया को खल किया है कि जो एक अजीम तरीन दरिया है। ऐ हारून, वो दरिया इतना अजीम है कि जो 4 फरसख में तक उसका हजम है और 4 फरसख तक उसकी लंबाई है। लेकिन याद रखना ये 4 फरसख दुनिया वाले 4 फरसख नहीं है। अभी ना उसने कोई बात की, ना उसने कोई सवाल किया, ना उसने मछली को दिखाया, मछली नुमा हैवान को दिखाया, ना कोई बात की। इमाम फरमाते हैं कि ए हारून सुन, वो 4 फरसख दुनिया के 4 फरसख नहीं है। जिस तरह क़यामत का दिन जो है 50,000 साल के बराबर होगा, वो एक दिन वहाँ का यहाँ के किस हद तक चला जाता है कोई समझ ही नहीं सकता और ना कोई उसका अंदाज़ा कर सकता है। मौला ने कहा ये फरिश्तों के 4 फरसख हैं कि जो दुनिया के 200 साल के बराबर एक फरसख होता है। इस कदर लंबाई है, इस कदर उसकी बुजुर्गी है। फिर मौला ने इरशाद फरमाया कि ए हारून, उनमें अल्लाह ने कुछ हैवानात को खल किया कि जिनके शिकम मछलियों की तरह हैं, जिनके चेहरे मछलियों की तरह हैं, जिनकी 2 आंखें हैं, जिनके 2 कान हैं और जिनकी ज़बान है और जिनका दहन है, जो उनमें नर है। अल्लाह ने उनके
चेहरे पे ठोड़ी की जगह पे स्याही रख दी है जो मर्दों की दाढ़ी की तरह होती है, और जो उनमें मादा है उनके सरों पे अल्लाह ने बालों की तरह की स्याही रख दी है। और फिर फरमाया उनके बदन पे चाने भी होते हैं, उनकी दुम भी होती है, और उनके अल्लाह ने छोटे छोटे हाथ करार दिए हैं जो इंसान के हाथों की तरह है, छोटे छोटे हाथ। और सुन ए हारून, उनमें से रोशनी निकलती है जो आंखों को खीरा करती है। इसलिए रोशनी निकलती है कि ये अल्लाह के रहमतों के करीब है। अल्लाह ने इनको फ़कत और फ़कत तस्बीह के लिए खल्क किया है, तहलील के लिए खल्क किया है, और ये तस्बीह और तहलील और तकदीस के अलावा कुछ नहीं करते। तो इसलिए इनके बदन से उन मकामात से नूर साते होता है, रोशनी निकलती है, रोशनी चमकती है। जब मौला ने ये जुमला फरमाया तो मैं यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनको तो खल्क किया इबादत के लिए, तस्बीह के लिए, तहलील के लिए, तकदीस के लिए, और हम भी वही हैं कि जिनको अल्लाह ने खल्क किया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को इबादत के लिए खल्क किया। खिलकत इंसानी का मकसद इबादत परवरदिगार है, खिलकत इंसानी का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसलिए कहते नहीं है जो जिस कदर इबादत करता जाए उसके चेहरे पे नूर साते होना शुरू हो जाता है, नूरानी चेहरा हो जाता है। लेकिन जो इबादतों से दूर हो जाए वो जलालतों में और तारीकियों में और जुल्मतों में मुब्तला हो जाता है। खैर, अलहासिल मदीनतुल मआजिज़ के बकौल और उसके अलावा सहीफ़ा के बकौल कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जुमला कहा और उसके बाद ये जुमला मौला ने फरमाया कि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं वो जो उसमें जो मछलियां होती हैं, जो मछली नुमा हैवान अल्लाह ने खल्क किए हैं, जो अल्लाह की इबादतें करते हैं, उनका साइज एक बालिश से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो छोटे साइज़ के होते हैं और इससे छोटे उंगलियों तक चले जाते हैं। वो छोटे और सबसे बड़ा साइज़ उसका एक बालिश का होता है। इनको अल्लाह ने इबादत के लिए खल्क किया है। जो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है और अल्लाह की इबादत से रूगर्दानी करता है या इबादत नहीं करता, अल्लाह उनके ऊपर सफ़ेद रंग के बाज को मुसल्लत कर देता है कि जो उनको उठा के ले आते हैं और उनको खा जाते हैं। ऐ हारून, ये बाज जो है ये उनकी ग़िज़ा वो मछलियाँ हैं, वो मछली नुमा हैवान हैं कि जो उन आलम में, उस आलम में और माँ बैन आसमान और ज़मीन अल्लाह ने जो दरिया खल्क किया है उसकी मखलूक इन सफ़ेद बाजों की ग़िज़ा है। ऐ हारून, वो जो मछली तेरे पास है उसको ले आ और इस बाज को दे दे, ये इसकी ग़िज़ा और इसका हक है कि जो तूने उसको छुपाया हुआ है। फौरन हारून ने हुक्म दिया कि जल्दी से जाके उसको लेके आओ। तश्ते तला को लाया गया और उस पे से कपड़ा हटाया। अभी तक मौला के सामने दिखाया नहीं था, बताया नहीं था, सुनाया नहीं था, लेकिन हम उस इमाम के कायल हैं। एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है, मैं उस इमाम का कायल हूँ कि जिसकी महफिल से मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए, और ये मौजज़ा भी अली का अजीब है तायर, सवाल भी ना करे हम मगर जवाब आए। तो जब वो कपड़ा हटाया गया तो पानी में वो उसको रखा हुआ था मछली नुमा हैवान को, तो क्या देखा कि वही शबी, वही चीज़, वही निशान जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए थे। तो फौरन उसने बाज के सामने उसको डाला है तो बाज ने उसको चंद टुकड़ों में तकसीम करके उसी टाइम खा लिया। और जो है, मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ कि ये इमाम ने कदम कदम पे जो उनको अपने इल्म का इजहार किया और अपना इल्म दिखाया, तो ये उनके लिए बायस शर्मिंदगी था। तो जब बायस शर्मिंदगी था तो उसी बिना पे रसूल से और आले रसूल से दुश्मनियाँ की गई। चूँकि उनके मुकाबले पे नहीं थे तो जाहिल जो है वो अहले इल्म के दुश्मन हो ही जाते हैं। कोशिश की गई, मुनाजरे रखे गए इमाम को जलील करने के लिए, लेकिन अल्लाह की ये मर्जी है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह जिसको चाहता है जिल्लत देता है। जिसको चाहता है अल्लाह बुलंदियों पे लेके जाता है और जिसको चाहता है जिल्लतों के बादलों में और जिल्लतों की वादियों में मुब्तला कर देता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, एक दिन हारून ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को देखा और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सवाल करता है कि सवालात तकरीबन कोई 20-25 हैं, लेकिन मैं इस एक सवाल पे इक्तफा करूंगा कि आप अपने शियों को रोकें, अपने चाहने वालों को रोकें, अपने आशिकों को रोकें कि आपको फर्जंदे रसूल ना कहा करें, आपको रसूल का बेटा ना कहा करें, आपको रसूल की औलाद से ना कहा करें। इमाम फरमाते हैं, कहना क्या चाहते हो? कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब दें, किस दलील से आप रसूल के बेटे हैं?
किस दलील से आप रसूल की औलाद से हैं, क्या दलील है कि आप रसूल के बेटे और रसूल की औलाद से हैं। भाई ये जुमला कहना था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस सवाल के जवाब से बाज रख, मैं इस तेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। कहता नहीं, मुझे आप सवाल का जवाब दें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू जवाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा नहीं, मुझे जवाब दे। इमाम ने कहा, देख तेरे अंदर सकत नहीं है कि तू इस सवाल के जवाब को बर्दाश्त कर सके। कहता नहीं, आप बताएं, मैं बर्दाश्त करूंगा और गुस्से में भी नहीं आऊंगा। इमाम कहते हैं, अच्छा मुझे ये बता, अगर रसूल आए और तुझसे आके किसी चीज का मुतालिबा करें, क्या तू दे देगा? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा रसूल आके तुझसे तेरी बेटी मांगे, क्या तू दे देगा? कहा बिल्कुल दे दूंगा, और मैं इस हवाले से फख्र करूंगा कि रसूल जो है उनको मैंने अपनी बेटी अता की, उनकी बारगाह में अपनी बेटी को पेश किया और ज़ौजियत रसूल में आई। कहा कि तू ये कर सकता है, लेकिन अगर रसूल आ जाए और आके ना वो मुझसे मांगेंगे बेटी और ना मैं बेटी दूंगा। कहा कि ये क्या बात हुई? कहा इसलिए कि तू रसूल से नहीं है, मैं रसूल से हूं, मैं रसूल की औलाद से हूं। मैं अपनी बेटी, जाहिर है हमारे जद है रसूल खुदा, मैं अपनी ना बेटी दे सकता हूं ना वो बेटी मांग सकते हैं। ये जुमला कहा तो फौरन कहता है, अहसन, आपने सही कहा, कोई अगला जवाब दीजिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बस काफ़ी है, इत्तफा कर। कहा नहीं, मुझे बताइए। इमाम ने फरमाया कि सूरह अनाम की 84-85 में आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस्सालिहीन। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि ईसा को अल्लाह ने ज़ुर्रियत इब्राहीम में, अंबिया में से करार दिया, उनकी ज़ुर्रियत में, हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से अल्लाह ने करार दिया है। कहा मुझे ये बता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन था? कहा उनका कोई बाप नहीं था, वो कलिमतुल्लाह थे, अल्लाह के कलमे से वो दुनिया में आए, उनकी माँ मौजूद है। तो आपने इरशाद फरमाया कि माँ की वजह से, मरियम में बतूल की वजह से ईसा ज़ुर्रियत में शामिल हैं, तो हम सैयदा की वजह से ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा में शामिल नहीं है। तो फौरन कहता है, अहसन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई और जवाब अता कीजिए। इमाम कहते हैं काफ़ी है। कहा नहीं, कोई और जवाब अता कीजिए। बस उसने ये जुमला कहा, अल्लाह की हुज्जत को फिर जला लाया। और इमाम फरमाते हैं, सुन, सूरह आले इमरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फमन हाज्जका फीह मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपने, जब इन पे हुज्जतें तमाम हो गई, कहा मुबाहिला जानता है? कहा बिल्कुल जानता हूं। कहा सबने लिखा है कि रसूल अकरम खुद गए मुबाहिले में और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को लेके गए, में हमारी जद्दा जनाब सैयदा को लेके गए और हसनैन करीमैन को लेके गए। कहा सबने लिखा है, तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये 5 हस्तियां पंजतन जो है वो मुबाहिले नसाराए नजरान के मुकाबले में रवाना हुए। कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कहा अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, न दो अबना अना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफूस को लाएंगे। फरमाया बेटों की जगह पे रसूल हसनैन को लेके गए और निसाअना की जगह पे सैयदा को लेके गए और अनफुसा की जगह पे अमीरुल मोमिनीन अली को लेके गए। कहा ये आयत के बाद अब कोई और दलील मांगता है कि हसनैन रसूल के बेटे हैं। अल्लाह कह रहा है कि रसूल के बेटे हसनैन हैं, तू और क्या दलील मांगता है? तो ज़ाहिर है जब अल्लाह ने बेटा कह दिया तो हम औलाद रसूल में से हैं। तो ये दुश्मनी उसकी बढ़ती चली जा रही है हर मौके पे, हर मकाम पे, कि किसी तरीके से इमाम को अजियत दी जाए, इमाम को शर्मिंदा किया जाए। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत देता है, इज्जतें उसकी हैं, अल्लाह जिसे इज्जत दे। अल्लाह ने जिसको मोहतरम बनाया, अल्लाह ने जिसको मासूम बनाया, अल्लाह ने जिसको
दुनिया के लिए हादी और रहबर मुकर्रर किया, अल्लाह ने जिसको हिदायतों का मरकज़ बनाया, अल्लाह ने जिसको रहमतों का मरकज़ बनाया, अल्लाह ने जिसको ज़ुर्रियत सैयदुल मुरसलीन में करार दिया, तो उसको कोई कैसे जलील कर सकता है। हाँ, ये बात है कि अगर कोई सूरज की तरफ जो है वो थूकना चाहे तो उसका थूक अपने मुंह पे आता है। सूरज कभी जो है वो आलूदा नहीं हो सकता। सूरज तो रहमतों का मरकज़ है, सूरज नेमतों का मरकज़ है, लेकिन इनका जालिमीन के साथ हुस्न खुश सलूकी, हुस्न खुश अखलाकी, ये इस बात की दलील है कि दरख्त पे फल होता है, कोई पत्थर मारता है, कोई जो है वो डंडा मारता है, कोई अजियत देता है, लेकिन ऊपर से कुछ और पत्थर की जगह पत्थर नहीं आता, लकड़ी की जगह लकड़ी नहीं आती, बल्कि कभी सेब आ रहा होता है, कभी आम आता है, फल आते हैं, रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। यहाँ पे जुल्म किए गए लेकिन इन्होंने बद्दुआ नहीं की, यहाँ पे परेशानियों के बादल छाए गए और घरों को आग लगा दी गई, जवानों को कत्ल कर दिया गया और बूढ़ों को कत्ल कर दिया गया, असारत तक आई, लेकिन बद्दुआ नहीं की। अगर बद्दुआ करते तो आम की बद्दुआ को अगर वो मुस्तहिक हो तो अल्लाह रद्द नहीं करता, अगर ये बद्दुआ करते तो जालिमीन के शजरे ख़त्म हो जाते, लेकिन आले मोहम्मद ने बद्दुआ नहीं की। इनका तो हुस्न सलूक ऐसा है कि कातिल हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम हसीन बिन नमीर इमाम सज्जाद के पास आता है, मौला उसको खाना भी खिला रहे हैं, मेहमान भी रहता है, और जाते हुए कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आप मुझे पहचान लेते तो आप कभी मुझे मेहमानी ना करते। मौला कहते कभी कोई अपने भाई के कातिल को भूल सकता है? तो कहा आपने पहचान लिया? मौला कहते मैं तो उस वक्त पहचान गया था जब तू चल रहा था मेरे घर की तरफ। हम मेहमान नवाज हैं, हम इज्जत, अगर चीज दुनिया के सामने आ जाए और दुनिया इस चीज को देख ले तो आज दुनिया गुलिस्तान बन जाए। हर एक जो है वो अपने मजहब के मुताबिक अमल करता रहे, कोई किसी के मजहब को ना छेड़े, अपनी इबादतें करे, अपने अकीदे पे पुख्ता और उस्तवार रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी कोई परेशानी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बीमारियों का इलाज करते हैं। मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगारा वास्ता इस हस्ती का, ये कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तमाम अफराद से इस वायरस को दूर कर दे। जो नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं और जो बाद में हमारे साथ शामिल होंगे, मेरी दुआ है परवरदिगार आलम उन सब की तमाम की परेशानियों को दूर करे, तमाम की मुश्किलात को आसान करे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो इमाम हैं कि जिन्होंने हमेशा अखलाक का दर्स दिया, हमेशा रहमतों का दर्स दिया, हमेशा इनायात का दर्स दिया, हमेशा लोगों को बताया कि खुश अखलाकी क्या है, हुस्न उसलूबी क्या है, और ये कहा कि कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली ना करना। इमाम के जहां और शागिर्द हैं वहां पे एक शागिर्द इमाम का जिसका नाम है अली बिन यकीन, ये हारून का वजीर आजम है और शागिर्द इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है और अहले बैत के चाहने वालों में इसका शुमार है, लेकिन ये अपने दीन को छुपा के उसके पास मौजूद है और आले मोहम्मद के चाहने वालों के कामों को अंजाम देता है, उमूरात को अंजाम देता है। मौला के पास आके ये कहता है कि मौला मैं इस जालिम हुक्मरान की हुकूमत से दस्तबरदारी करना चाहता हूँ, मौला मैं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, वो जुल्म करता है और मैं मजबूर होता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। तो मौला ने एक जुमला कहा, अली बिन यकीन ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है कि तू हमारे चाहने वालों की ढारस है, कि जब किसी को कोई परेशानी आती है वो तेरी पास आके तू उसकी परेशानी जिस तरीके से हो, अगर कोई कैद कर दिया जाए तो तू उसको रात के अंधेरे में छुड़वा देता है, कोई परेशान हाल हो, किसी का माल हुकूमत जब्त कर ले तो तू उसको माल दिलवा देता है, तू ढारस है, तू सहारा है। और याद रख अली बिन यकीन, जालिम बादशाह की खिदमत का कफ़ारा ये है कि कोई जालिम बादशाह के पास मुलाजिम हो तो उसका कफ़ारा ये है हमारे चाहने वालों की खिदमत करे, गरीबों की खिदमत करे। अगर आप मिनिस्टर की डिग्री पे हैं, अगर आप बहुत बड़े ताजिर हैं, अगर आप बहुत बड़े अमीर हैं, अगर आपको कोई मनसब मिला है हुकूमत का, तो उसका शुक्राना क्या है अल्लाह की बारगाह में कि अगर कोई परेशान हाल आ जाए उसकी परेशानी दूर करें, कोई मकरूज आ जाए उसके कर्जे को अदा करवाएं, कोई हाजतमंद है उसकी हाजतों को पूरा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप देखते हैं सरकारी महकमों में कि एक काम हो तो उसको दूसरी जगह भिजवाया जाता है, हालांकि वो खुद कर सकता है। फलां जगह पे जाके साइन करो, फलां से काम करवा के लाओ, फलां से जाके मंजूरी करवा के लाओ, मैं कर नहीं
नहीं सकता, मेरे इख्तियार में नहीं है, या इतना ये दो, इतनी रिश्वत मांगी जाती है, तो याद रखें ये लोग वो हैं कि जो जहन्नम के गढ़ों में अपनी जगह बनाते हैं। खुशकिस्मत है कि जो हुकूमत के ऊंचे मुलाजिम हो और ऊंची सीट पे हो, और अगर कोई परेशान हाल आ जाए और उसकी परेशानी को दूर कर दे तो अल्लाह इसकी परेशानियां दूर करता है। आप समझते हैं कि किसी की परेशानी दूर होना उसकी परेशानी दूर होना नहीं होता, अपनी परेशानी दूर होना होता है। किसी के बच्चे को ठीक करना, वो शिफा दिलवाना, इलाज करवाना, उसका इलाज करना नहीं है, बल्कि अपने घर का बीमा करना होता है। किसी की मदद करना, उसकी मदद करना नहीं, बल्कि अपने अपने आप की मदद करना है, अपने आप की मदद करना है। इसीलिए तो फरमान है कि जो एहसान करता है वो अपने नफ्स के साथ एहसान करता है, जो बुराई करता है वो अपने आप के साथ बुराई करता है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम ऐ बेसबब माआसीकुम, कि जो कुछ भी तुम्हारे पे परेशानियां आती हैं वो तुम्हारी अपनी बलाओं की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से। एक शख्स आके कहता है सरकार के पास आके, उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तो आपने फरमाया हो सकता है कि तू अपने माँ बाप के आगे चलता हो। कहा नहीं, मैं अपने माँ बाप के आगे नहीं चलता। कहा हो सकता है तू अपने माँ बाप को देखने ना जाता हो। कहा नहीं, मैं देखने भी जाता हूं। तो उसके बाद कहा कि हो सकता है तू अपने माँ बाप की माली मदद ना करता हो। और ये जुमले कहा तो फिर एक और शख्स आके परेशानी का दावा करता है, तो आपने जुमले दोहराते दोहराते कहा कि हो सकता है तू उनसे मिलने नहीं जाता। कहा वो तो इंतकाल कर गए। फिर कहा हो सकता है तू उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए नहीं जाता। तो याद रखिएगा, उनकी कब्रों पे जाना अपनी परेशानियों का हल है। तो मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं ना आपके सामने, माँ बाप की कब्रों से इंसान की परेशानियां दूर होती हैं। रिवायात में मिलता है कि कोई परेशान हाल है तो अपने माँ बाप की कब्र पे जाके दुआ मांगे, अल्लाह उसकी परेशानियों को उसके माँ बाप की वजह से दूर कर देता है। तो मैं आपसे सवाल करने का हक रखता हूं ना, गैर मासूम बाप की कब्र में ये तासीर मौजूद है, गैर मासूम माँ की कब्र में ये तासीर मौजूद है। तो अगर करबला से हाजतें पूरी हो जाए, अगर नजफ से हाजतें पूरी हो जाए, अगर खुरासान से और अगर शाम से, मदीने से, यसरफ से इंसान की हाजतें, जन्नतुल बकी से मुरादें पूरी हो जाए, तो ताज्जुब की क्या बात है। मैंने हबीबुस्सैर में और दीगर किताब में मैंने खुद पढ़ा है कि अफलातून काफिर था, मुसलमान नहीं था, बहुत बड़ा हकीम था। जब उसका दुनिया से इंतकाल हुआ तो उसके शागिर्द क्या करते थे, उसकी कब्र के पास बैठ के किताब रख के मुबाहिसा इल्मी किया करते थे। तो जो मसला उनको समझ में नहीं आता था, उसकी कब्र के पास बैठ के पढ़ने से उनको समझ में आ जाता था। तो हाथ जोड़ के मैं इल्तमास करूंगा ना कि काफिर की कब्र में यह तासीर है, तो हुज्जतुल्लाह की कब्र में, बकीयतुल्लाह की कब्र में और अल्लाह की बारगाह में वलीउल्लाह की कब्र में क्या तासीर मौजूद नहीं है। फकत मांगने का तरीका आना चाहिए, पुकारने का सलीका आना चाहिए। तो इमाम हमेशा रवादारी का दर्स दे रहे हैं कि हाजतों को पूरा करो। अली बिन यकीन को मौलाना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खबरदार कभी किसी हाजतमंद को खाली ना लौटाना, किसी की परेशानी ऐसी ना हो कि तेरे पास से आए और तू उसकी हाजत को, परेशानी को पूरा दूर कर सकता हो और तू उसको दूर ना करे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जो बुजुर्गान हैं, जो ऊंचे ऊंचे दर्जात पे मौजूद हैं, खुदारा जिंदगी वही 60 साल 50 साल, इससे ज़्यादा किसी ने जिंदा नहीं रहना, 70 साल। हदीस भी है कि अक्सर अमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन व अक़ल्लु मन यतजावज़ुहा, कि आपका फरमान है, सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान में होंगी और बहुत कम होंगे जो इससे आगे निकल जाएं। कितनी ज़िंदगी है। कुछ मोमिनीन के कुछ परेशान हालों के काम करके अपनी ज़िंदगी, अपनी कब्र में चिराग भेज दें और अपनी कब्र को मुनव्वर करें, वहाँ पे कालीन भेज दें, वहाँ पे चरागानी करें, अपने जन्नत के घरों को कुशादा करें। यहाँ तो आप कहते हैं कि 10 कनाल का घर हो, वहाँ पे कब्र के बाद में अपनी कब्र को कुशादा किया है, जन्नत के घर को कुशादा किया है। ये जन्नत जाने की उम्मीद भी है या नहीं है? लोगों का हक खा के, गरीबों का हक खा के और मुस्तहिकीन का हक खा के और गबन करके आप चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में आपको मकाम मिले। कब्र वही है कि चाहे वो सऊदीया का बादशाह हो, चाहे वो कई ईसाई बादशाह हो, कोई भी हो, सदर हो, वजीर हो, जो भी हो,
कब्र उसकी वही होगी जो एक कब्र जितनी है, 2 मीटर की कब्र जो है वही मिलेगी। और चाहे ऊपर आप संगे मरमर लगा लें, आप उसके ऊपर जो मर्जी आराइश कर लें, लेकिन अंदर वही कब्र होनी है कि जो, या किसी पे अगर मुस्तहिक है रहमत का तो उस पर रहमतें नादिल होंगी, मुस्तहिक है अजाब का ऊपर से जितना मर्जी लेप कर दें आप और बहुत अलकाबात लिख दें, लेकिन अंदर अगर अजाब का मुस्तहिक है तो उस पर अजाब होगा। ज़ियारत जामे कबीरा का फिक्रा है, अजसादुकुम फिल अजसाद व अरवाहुकुम फिल अरवाह व कुबूरुकुम फिल कुबूर व अब्दानुकुम फिल अब्दान। ए आले मोहम्मद, आपकी कब्रें कब्रों में हैं, लेकिन क्या कहने, एक कब्र पे अजाब नादिल होता है, लेकिन ए आले मोहम्मद आपकी कब्र क्या कब्र है कि रहमत के फरिश्ते अर्श से नादिल होते हैं और तवाफ करके जाते हैं। इसीलिए मिलता है कि करबला मुअल्ला में हर रात 1000 फरिश्ता उतर के ज़ियारत करके जाता है। और हकीकत है अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मन, अपने आप को इस्लाह करें। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दर्स है, ये मौला का दर्स है कि कभी अल्लाह के बारे में गाफिल ना होना, कभी अब्दुल्लाह को ना छोड़ना, कभी इबादुल्लाह को ना छोड़ना, कभी हुकूकुन नास से गाफिल ना होना। अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा। दूसरों की मुश्किलों के आसानी का सबब बनो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे एक छोटा सा वाकया यहाँ पे याद आया। एक शख्स है, वो कहता है कि पिछले 20 साल से मैं एक बेहतरीन डॉक्टर के पास जाता हूं और वहां पे पर्ची कटवाता हूं, डॉक्टर के पास जाके 1000 रुपए की या जितने की जो भी होती है कीमत, मैं उसकी पर्ची कटवा के बैठ जाता हूं और देखता हूं कोई मुस्तहिक फर्द मुझे नजर आए कि जो डॉक्टर के पास आया है, जिसके बाद उसको पर्ची दे के मैं आ जाता हूं। कहा मैं 20 साल से ये अमल कर रहा हूं और मैंने अभी तक ना एक गोली खाई है, ना कभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश आई। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, नेक काम आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे, किसी पे एहसान करेंगे अपने लिए करेंगे, किसी के साथ मुखलिस होंगे अपने साथ मुखलिस होंगे, किसी को चूना लगा के ये ना समझिएगा मैंने उसको चूना लगाया, अपने को चूना लगाया है। किसी के साथ धोखेबाजी उसके साथ नहीं की, अपने साथ की है। हलाल खाना रहमतों का सबब है, हराम खाना बुराइयों का सबब है। कितना खा लेंगे, एक प्लेट जितना ही आपने खाना है। अमीर ने भी इतना खाना है, गरीब ने भी इतना खाना है। कहते हैं 2 बंदे भाग रहे थे, एक से पूछा गया क्यों भाग रहा है, कहा कि मैं भाग रहा हूं ताकि मेरा जिस्म पतला हो जाए और मैं काफी मोटापा आ गया है। दूसरा से पूछा तू क्यों भाग रहा है, कहा मैं रिस्क ढूंढने के लिए भाग रहा हूं। तो खुदारा ऐसे लोगों का वसीला बने कि जिनके पास रिस्क की कमी है। परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की परेशानियों को दूर करे और आपकी हाजात को पूरा करे और आपको इन मकामात की ज़ियारत नसीब करे। अली बिन यकीन मौला के सहाबी हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सहाबी और अजीम सहाबी। मदीने में मक्के में गए, उम्रा किया, हज बजा लाए और उसके बाद मदीने आए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए तो जब पूछा कि मौला से कहे अली बिन यकीन आए हैं, तो मौला ने मना कर दिया, कहो कि मैं नहीं मिलना चाहता, कहो कि इमाम मूसा काज़िम नहीं मिलना चाहते, इमाम मूसा काज़िम घर पे नहीं है, तेरे लिए घर पे नहीं है, तेरे लिए मिलना नहीं चाहते। ये हुआ क्या था, सबब क्या था कि अली बिन यकीन अपने कसर में मौजूद थे। इब्राहीम जम्माल, जम्माल कहते हैं ऊँटों को चढ़ाने वाला, लेके जाने वाला। इब्राहीम जम्माल ये कूफे से गया अपनी हाजत के लिए, वहां पहुंचा तो किसी ने जब इसने दस्तक दी, कहा कहो कि इब्राहीम जम्माल मिलने आया है, तो अली बिन यकीन ने कहा कह दो मैं घर पे नहीं हूं। तो जो जुमला इसने बोला था वही इमाम ने कहा कि कह दो कि मैं तेरे लिए घर पे नहीं हूं, मैं तेरे लिए तुझसे मिलना नहीं चाहता। ये हैरान परेशान हो गया कि मैंने क्या ऐसी जसारत की है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, करीम इमाम, शफीक इमाम, इनायत करने वाले इमाम, इमाम ने कह दिया कि मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता, मैं घर पे नहीं हूं तेरे लिए। एक दिन दरवाजे में बैठा रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन इमाम घर से बाहर निकले, कदमों पे गिर के कहता है यब्न रसूलल्लाह, मुझसे क्या जसारत हो गई कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते मौला, मैं तो आपका नौकर, आपका खादिम। मौला अगर हुकूमत की वजह से नाराज है मैं अभी हुकूमत छोड़ देता हूँ, मौला आप जो कहे मैं सब सरमाया बांट देता हूँ, नाराज क्यों है। मौला कहते हैं सुन, इब्राहीम जम्माल कूफे से तुझे मिलने आया था और तूने मना कर दिया था और तूने कहा था कि मैं घर पे नहीं हूं। कहा सुन, वो इब्राहीम जम्माल नाराज हुआ है। मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने अफराद ऐसे हैं कि जिनको आप फौरन मना कर देते हैं कि कह दो कि बाबा घर पे नहीं है। और मजे की बात है कि बेटे को कहते हैं कि कहो बाबा घर पे नहीं, बेटा भी ये कहता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। तो अज़ान मोहतरम ये सूरत हाल होती है। मिनिस्टर नहीं जी, वो कहो जी मिनिस्टर साहब घर पे नहीं है, कहो जी दफ्तर में नहीं है, कहो जी डीएसपी साहब नहीं है,
अब वजीर मिनिस्टर साहब नहीं है तो हम मना कर देते हैं ना। इमाम ने कहा इब्राहिम जम्माल तेरे पास आया था बगदाद में और तूने कह दिया था उससे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। कहा वो जब गया है तो उसको नाराजगी फील हुई, उसको दुख हुआ कि तुझसे मुलाकात नहीं हुई, उसको पता चल गया तू घर में है। कहा वो सबब उसका ऐसा हुआ कि अल्लाह तुझसे नाराज हो गया। ऐ अली बिन यकीन, ना तेरा हज कबूल है, ना तेरा उम्रा कबूल है, ना तेरा मदीने जाना कबूल है, ना सरकार की ज़ियारत कबूल है, जब तक तुझसे इब्राहिम जम्माल राजी नहीं होता, अल्लाह तुझसे राजी नहीं होगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला कहा है कि अल्लाह तुझसे नाराज है और अल्लाह तुझसे राजी नहीं है, इब्राहिम जम्माल के लिए तूने ये जुमला कहा कि मैं घर पे नहीं हूं, ए अली बिन यकीन अल्लाह तुझसे नाराज है, जब तक वो तुझसे राजी नहीं होगा ना तेरा हज कबूल होगा, ना तेरा उम्रा कबूल होगा, ना मदीने की ज़ियारत तेरी कबूल होगी। हम कितने लोगों को ऐसे कह देते हैं। तो खुदारा कभी किसी को ना कहा करें, हाँ अगर आप पूरी कर सकते हैं तो पूरी कर दे, क्या हर्ज है इसमें। एक बंदा इतने फासले से चल के आपके पास आया है तो उसका आना जो है ज़ाहिर है किसी मकसद के तहत आ रहा है, आप उसको लौटा दें, ये अल्लाह को बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप किसी को अपने घर से धुतकार दें और रद्द कर दें। साहिल को कभी दरवाजे से रद्द ना किया करें। अज़ान मोहतरम कहा कि मौला मैं क्या करूं। मौला कहते हैं चूंकि तू हमारा चाहने वाला है, रास्ता तुझे हम बताएंगे कि किस तरीके से राजी किया जाता है। कहा मौला मुझे ना इब्राहिम जम्माल के घर का पता है, ना इब्राहिम जम्माल का पता है कि इब्राहिम जम्माल कहाँ पे रहता है और किस जगह पे है। मौला ने कहा परेशान ना हो, हम तेरे लिए इंतजाम कर देते हैं। जन्नतुल बकी में रात के वक्त जाना, कब्रस्तान बकी में, वहां पे तुझे एक घोड़ा नजर आएगा और एक रिवायत के मुताबिक ऊंट के वो नजर आएगा जिस पे जीन होगी, उस पे सवार हो जाना, बगैर बताए बगैर कुछ किए वो तुझे इब्राहिम जम्माल के दरवाजे तक ले जाएगा। तो मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं ना, जिनके इज़्न से बनी हुई सवारियां, जिनके इज़्न की बताई हुई सवारियां बगैर एड्रेस के बताए हुए, बगैर मकाम के बताए हुए, बगैर जगह और शहर के बताए हुए जाने वाले को, सवार को वहां तक पहुंचा सकती है। तो आले मोहम्मद को क्या हमारी हाजात का इल्म नहीं होगा? क्या आले मोहम्मद हमें परेशानियों को दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें मांगना नहीं आता, वहां तो अता ही अता है, इनायतें ही इनायतें हैं। रात का वक्त आया, अली बिन यकीन वो घोड़े पे सवार हुए और उस सवार ने उसको अंधेरे में इब्राहिम जम्माल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से इब्राहिम जम्माल की आवाज आई, कौन? कहा कि मैं अली बिन यकीन हूं। कहा कि मजाक ना करो, वजीर आजम मेरे दरवाजे पे क्यों आएगा? कहा कि नहीं, खुदा की कसम मैं अली बिन यकीन हूं। कहा अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। तो कहा इजाजत है। अंदर आए तो देखा वाकईन वजीर आजम है। कहा कि क्यों आए हैं, मेरे पास क्यों आए हैं आप? कहा कि इब्राहिम जम्माल, तेरी वजह से ना मेरा हज कबूल हुआ है, ना मेरा उम्रा कबूल हुआ है, ना मेरी ज़ियारतें कबूल हुई हैं, इसलिए कि तू आया था, मैंने तुझे मना कर दिया था, तो अल्लाह ने मेरी कोई इबादत को कबूल नहीं किया। तू मुझसे राज़ी हो जा ताकि मेरी सारी इबादतें और सारी मेहनतें रायगा ना जाएं। भाई ये जुमला कहना था। इब्राहिम जम्माल कहता मैं तुझसे राज़ी हो गया, जा, मैं अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह इमाम की खातिर मैं तुझसे राज़ी हो गया। तो फौरन ये जुमला कहता है कि नहीं, ऐसे रज़ायत नहीं चाहिए। कहा कि मैं अपना मुंह ज़मीन पे रखता हूँ। क्या पोस्ट है? वज़ीर आज़म की पोस्ट है, हारून का वज़ीर आज़म है। कहा कि मैं अपना मुंह ज़मीन पे रखता हूँ, तू अपना पैर जो है जूते समेत मेरी रुखसार पे रख ताकि मुझे ज़िल्लत का एहसास हो और मैं फिर समझूंगा कि मेरी तौबा कबूल है। अल्लाह अकबर। इमाम का ऐसे नहीं फरमान, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, लैसा मिन शिय्यतिना मन लम युहासिब नफ्सहु फी कुल्ल यौम, कि वो हमारा शिया नहीं है कि जो हर दिन अपने नफ्स का मुहासबा ना करे, अपने आप का मुहासबा ना करे। मैंने आज क्या किया, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कज़ा की, किसका हक खाया, किसका हक गसब किया, अपनी बहनों का हक दिया कि नहीं दिया, बाप चला गया तो मैं बहनों को भूल गया, अपनी बेटियों का हक दिया या नहीं दिया, अपने बेटों का हक दिया या नहीं दिया, अपने रिश्तेदारों का हक दिया। मौला फरमाते हैं वो हमारे शियों में से नहीं है जो अपने नफ्स का मुहासबा ना करे कि अपने नफूस। आजकल तो कहा जाता है ना कि भाई बहन की शादी करा दी उसको हक दे दिया, बेटी की शादी करा दी उसको हक दे दिया। कौन सा हक है, कैसा हक है? शादी कराना आप पे लाजमी है, अपनी बेटी की शादी कराएं, अपनी बहन की शादी कराएं, कोई हक नहीं है। हक ये है कि
کہ جو شریعت نے مقرر کیا ایک حصہ بیٹی کا اور 2 حصے بیٹے کے، یہ حق ان کو ادا کریں. یہ شریعت نے حق دیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس حق سے بے نیاز کرنے والے؟ جب آپ اپنے گھر میں موجود کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے حقوق کو کیا ادا کریں گے؟ اللہ کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ تو عزیزان محترم کہا کہ یہاں پہ قدم رکھ. جب وہ قدم رکھا ہے تو فوراً مدینے کا رخ کر کے کہا اے امام موسیٰ کاظم کہ اب مجھ سے راضی ہیں. فوراً سوار ہوئے اور مدینے پہنچے. ابھی مدینے پہنچے ہیں، خدا شاہد ہے کہ جنت البقیع کے دروازے پہ کیا دیکھا؟ جنت البقیع پہ امام دونوں ہاتھ کر کے کھڑے ہیں اور مرحبا مرحبا بناصرنا، اے ہمارے ناصر خوش آمدید. اے علی بن یقین تیرا حج بھی قبول ہو گیا، تیرا عمرہ بھی قبول ہو گیا، تیری عبادتیں بھی اللہ نے قبول کی. ایسا کریم امام، ایسا شفیق امام، ایسا عظیم امام کہ جس کی عظمتوں پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. آج کا دن 25 رجب امام کی شہادت کا دن ہے. بس یہ چیزیں تھیں جو کینے تھے جو دلوں میں اس حاکم کے پروان چڑھتے رہے. اور امام کا دشمن چونکہ عزت علم سے ہے، عزت تقوی سے ہے، نہ وہاں علم تھا نہ وہاں تقوی تھا. تو جب امام کی طرف سے یہ ہو تو مولا کو کس طریقے سے ظلم و ستم کے ساتھ رکھا گیا. مولا کو زندان میں بلایا گیا اور زندان بھی عام زندان نہیں تھا، اور وہ اس حاکم کا زندان تھا جو سادات بنی فاطمہ کو زندہ درگور کیا کرتا تھا. حقیقت میں کچھ قاتل ایسے ملتے ہیں تاریخ میں جنہوں نے اتنا قتل کیا آل محمد کے چاہنے والوں کا، اور یہ جملہ کا میں نے اب کسی کو نہیں چھوڑا. ایک حجاج بن یوسف ملعون ہے، اس نے قتل کی انتہا کی، اور ایک اس حاکم بغداد نے اتنا ظلم کیا کہ امام کو تو شہید کیا ہی کیا ہارون نے، اور اتنے سادات بنی فاطمہ کو قتل کیا. کتابیں بھری پڑی ہیں کس کس سادات بنی فاطمہ کو اس نے قتل کروایا اور شہید کیا. میں کیا آپ کے سامنے جملہ کہوں کہ مولا کو کس کس جگہ پہ رکھا گیا، مولا پہ کتنا ظلم کیا گیا. ظلم کی انتہا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ. 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا. مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی. امام موسیٰ کاظم کو جب گرفتار کیا گیا، مولا نماز کی حالت میں تھے، نماز نہیں پڑھنے دی ظالموں نے. اسی حالت میں گرفتار کر کے مولا کو لے گئے، زندان میں رکھا. سب سے پہلے بصرے میں رکھا گیا اور بصرے کے حاکم کو کہا گیا کہ ان کو قتل کر دو. اس نے انکار کیا. تو اس کے بعد پھر امام کو بغداد لے کے آئے، اور بغداد میں لا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک وزیر تھا ان کا، فضل ابن ربی، جو علی بن یقین کے بعد اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. فضل ابن ربی کے گھر میں رکھا گیا، اور فضل ابن ربی کے ایک کمرے میں امام کو محصور کر دیا گیا تاکہ کوئی امام کو نہ دیکھے. لیکن فضل ابن ربی چھت سے دیکھتا تھا کہ جب اس نے نگاہ کی امام کو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ مولا سبوح قدوس ان کی تسبیح کر رہے ہیں اور عبادت پروردگار میں مصروف ہیں، تو یہ دیکھ کے وہ اتنا گرویدہ ہوا کہ مولا کا عاشق بن گیا، اور مولا کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. یہ صورتحال تھی کہ ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام آتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو عزیزان محترم، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ایک دفعہ ہارون نے جب اس کے سامنے امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا کس حال میں ہے، تو اس کی انداز سے اس کو لگا کہ اس کے دل میں امام موسیٰ کاظم کی محبت بیٹھ گئی ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کے لباس اتار کے فضل ابن ربی کے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ ہے محبت اہل بیت کی سزا، کہ اگر کوئی آل محمد سے محبت کرتا ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے. ظلم بڑھتا چلا گیا. ظلم کی یہ انتہا تھی فرزند رسول پہ، آل رسول پہ، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس بے دردی کے ساتھ ظلم کے ساتھ مولا کو رکھا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. میں بس یہاں پہ اپنے بیان کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ طرح طرح کے زندانوں میں مولا کو لے جایا گیا. ہر طرح کے زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور طرح طرح کے ظالموں کو اور تشدد کرنے والوں کو مولا کے پاس بھیجا گیا. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. آپ سب کو جو آل رسول کے غم میں غمگین ہیں، میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیاں دور کرے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج اس کا جنازہ ہے. دشمنیاں زندگی میں ہوتی ہیں. امام موسیٰ کاظم نے ایک خط لکھا تھا اس کو زندان سے کہ اے ہارون، یاد رکھنا ایک زندگی کا دن میری زندگی میں سے کم ہو رہا ہے اور ایک تیری زندگی میں سے کم ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں
तबाह कार और जालिम लोग जो है उनका अंजाम अच्छा नहीं है, अल्लाह उन पे ज़रूर जो है उनसे बदला लेगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को उस अंदाज में रखा गया। मैं अब यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो अफराद तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ लाइव में मौजूद हैं और देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में, कि एक मलऊन है सिंधी इब्न शाहिक, जो जिंदान बान है ये हारून का, और ये यहूदी था। और आपने पैगंबर का फरमान भी सुन लिया है कि जितना यहूदियों ने मुझे तंग किया है उतना किसी ने तंग नहीं किया। और उसके अलावा कुरान करीम भी है, में भी वाज़ेह है कि लाई तज़ानकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबी मिल्लतहुम, ये कभी तुमसे यहूदी राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम जो है उनकी पैरवी ना करो। तो इन यहूदियों ने बहुत तंग किया, और सूरत हाल क्या हुई कि अज़ान मोहतरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये जो जिंदान बान था, इसने मौला को इतनी अजियत दी कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन इमाम ने एक जुमला फरमाया, इलाही खल्लिसनी, ऐ अल्लाह अब मुझे उठा ले, अब मैं मूसा काज़िम इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं ये जुमला कहूँगा, ये दो ने ये जुमला कहा था। एक रसूल की बेटी ने ये जुमला कहा था कि अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, अल्लाह मेरी मौत को जल्दी कर दे, मैं जाना चाहती हूँ। और एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे उठा ले। मैं ये एक जुमला सैयद साजिदीन ने कहा था कि काश मैं आज के दिन के लिए इस दुनिया में ना आया होता कि अपनी बहनों और पुपियों को शराबी के दरबार में रसन बस्ता देखता। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। भाइयों, आले मोहम्मद के जनाजे बड़े अजीब जनाजे हैं। आले मोहम्मद के, आज दुनिया सब कहती है कौन है जो आले मोहम्मद को नहीं मानता। मैं ये कहूँगा, अगर सारी दुनिया आले मोहम्मद को मान लेती तो इनके जनाजे ऐसे ना होते। रसूल का जनाजा उठा ही नहीं, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा जिस जगह सरकार दुनिया से गए उसी जगह पे आपकी तदफीन हो गई। अमीरुल मोमिनीन का जनाजा रात के अंधेरे में उठा, सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा। लेकिन दो भाई हैं, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है। दोनों के जनाजे बड़े अजीब जनाजे हैं। मैं कहूँगा दोनों के जनाजे ऐसे जनाजे हैं, एक जनाजे के ऊपर तीर है, दूसरे का जनाजा तीरों के ऊपर है। एक के जनाजे के ऊपर तीर, दूसरे का जनाजा तीरों के ऊपर। हमारी निगाहें अभी कुछ आगे जाती हैं तो हमें एक कुछ मंजर और नज़र आता है। वो क्या नज़र आता है कि पुल बगदाद पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जनाजा रखा है और एक मुनादी निदा दे रहा है कि कोई जनाजे में शिरकत ना करे, ये राफजियों के इमाम का जनाजा है। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। 3 दिन तक पुले बगदाद पे जनाजा पड़ा रहा, लेकिन सबको पता था ये इमाम मूसा काज़िम का जनाजा है। लोग जानते थे ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जनाजा है। इसलिए कुछ जनाजे ऐसे हैं जो 3 दिन तक रहे। एक इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का जनाजा, इमाम रज़ा आपकी किस्मत है, आपके बाप का जनाजा भी 3 दिन रहा, आपके बेटे का जनाजा भी 3 दिन रहा। लेकिन मैं कहूँगा इमाम मूसा काज़िम का जनाजा, जवादुल अइम्मा का जनाजा जन्नतुल खुलूद की रिवायत के मुताबिक, और सैयदुश शुहदा का जनाजा 3 दिन तक पड़ा रहा। लेकिन फ़र्क है, इमाम मोहम्मद तकी का जनाजा सबको पता था ये इमाम जवाद का जनाजा है। इमाम मूसा काज़िम का जनाजा सबको पता था इमाम मूसा काज़िम का जनाजा है। लेकिन करबला वाले का जनाजा, अज़ादारों, इसलिए कि बदन पे सर हो तो पहचान होती है कि ये किसका बदन है, और बदन पे सर हो तो पहचाना जाता है। लेकिन मेरी जाने कुर्बान हो जाए उस मजलूम इमाम पे जिसके बदन पे ना सर है ना बदन पे लिबास है। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, बहन जब तशरीफ लाई तो क्या देखा कि पत्थरों के बीच में एक जनाजा रखा है। बीबी को शक गुजरा ये किसका जनाजा है, ये मेरे भाई का जनाजा है। काफी देर तक देखती रही, अब क्या देखा, फुरात की जानिब से 2 कबूतर आए जिनकी मिनकारों में पानी था। माकातिल में उलमा ने लिखा है कि उन्होंने कटी हुई गर्दन पे पानी बहाया और चले गए। अब जनाब सैयदा शरीकतुल हुसैन ने फरमाया, अंत आखी, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है, क्या तू ही वही भाई है। फिर आपने रुख किया किधर का, आपने रुख किया मदीने का, और एक जुमला कहा जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह इलैका अश्कु या रसूल अल्लाह, मैं आपसे शिकायत करूंगा इन लोगों की जो इन्होंने जुल्म किया। उसी तरह से ये आले मोहम्मद का घराना है, जब इन पे परेशानी आती है तो रसूल अकरम को पुकारते हैं। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, बीबी ने भी रुख किया एक मरतबा मदीने का, और वहां से एक जुमला फरमाया करबला से, या जद्दा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा, ए नाना आप पे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, ये
आपका हुसैन है, मेरी जानें कुर्बान हो जाए, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे। 3 दिन तक जनाजा पुल बगदाद पे पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जनाजा उठा, उसको एहतशाम से जनाजा उठा, बड़ी इज्जत से जनाजा उठा। और उसके बाद वहाँ का जो हाकिम है, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हारून के चचाजाद ने आके कहा कि मैं कफन दूंगा इमाम मूसा काज़िम को, और कहते हैं कि अहम तरीन कफन जो मदीने से लेके आया था, और उसने वो कफन इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में पेश किया और मौला को कफन पहनाया गया। मैं कहूँगा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपका जनाजा उठा, मौला आपको कफन में मिला, गुस्ल में मिला, लेकिन हमारी जानें कुर्बान हो जाए। अस्सलामु अलल मदफून बिला गुस्लिन वला कफन, मेरा सलाम हो उस मजलूम इमाम पे जिसको ना गुस्ल मिला ना कफन मिला। अज़ादारों 3 दिन तक पुल बगदाद पे जनाजा रहा। एक मौला का चाहने वाला था, एक मौला का चाहने वाला हाकिम गुजरा है, बादशाह गुजरा है, उसने वसीयत की थी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं मेरा जनाजा लेके जाना, और जनाजा जैसे मर्जी ले जाओ, अपने बेटे को कहा था। लेकिन जब बगदाद पहुंचना, मुझे काज़मैन में दफन करना, और मुझे बगदाद पहुंच के पुल बगदाद पे मेरा जनाजा रख देना, और जनाजा वहां से 4 मजदूर लेके आना जो मेरा जनाजा उठाए। मैं कह चुका हूं ना, इमाम मूसा काज़िम वो मजलूम है। अजीज़ो, खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। दुश्मनियां जिंदगी में होती हैं, मरने के बाद कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन ये इमाम मूसा काज़िम है जिनका जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया। 4 मजदूरों ने, जिसकी इतनी औलाद हो, कसीर औलाद है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, लेकिन 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया। एक जुमला कह के वो मैं बादशाह का जुमला अर्ज करके आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। जनाजा जब 4 मजदूरों ने उठाया है ना, तो अब आपस में बातें करते हैं। कहा हमने तो सुना था कि इमाम मूसा काज़िम का गोश्त जो है जिंदान की दीवारें खा गई, मौला पे इंतहा असीरी गुजर गई, जिंदा में जवानी और पीरी गुजर गई। हमने तो सुना था जिंदा में जवानी और पीरी गुजर गई, लेकिन ये जनाजा तो बड़ा वजनी है, क्या मामला है? जनाजे को नीचे रखा गया, कपड़ा हटाया गया, हमारी जानें कुर्बान हो जाए। क्या देखा कि पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां अभी तक मौजूद है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के। जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया, पुल बगदाद पे जनाजा रखा गया, हमारी जानें कुर्बान हो जाए। ये बादशाह ने वसीयत की मेरा जनाजा भी पुल बगदाद पे रखना, मेरा जनाजा भी 4 मजदूर उठा के जाए। अज़ादारों, जनाजा उसी एहतराम से चला। जब बगदाद पे पहुंचा है, वहां से 4 मजदूर बुलाने का हुक्म दिया बेटे ने, तो सब कहते हैं मजदूर क्यों बुला रहे हो? कहा चुप रहो। मजदूर आए, कहा हम बादशाह का जनाजा उसी इज्जत से लेके जाना चाहते। कहा रुक जाओ। 4 मजदूर आए, मजदूरों से कहा जनाजा उठाओ और आगे लेके जाओ। तो कहा अभी क्या कर रहे हैं? बादशाह का जनाजा है। कहा मेरे बाप की वसीयत है कि 4 मजदूर जनाजा उठाए। मैं चाहता हूँ जिस तरह हमारा इमाम मजलूमाना दुनिया से गया है, हमारा जनाजा भी ऐसे जाए। अभी मजदूर उठाने वाले थे तो क्या देखा कि बगदाद काज़मैन की तरफ से घुड़सवार आता है और आके कहता है कि मैं इमाम मूसा काज़िम के हरम का मुतवल्ली हूँ, मैंने मौला को ख्वाब में देखा है। इमाम मूसा काज़िम फरमाते एक जनाजा आ रहा है, और जनाजे के लोग जो है जनाजा को रख दिया है, और 4 मजदूर जनाजा उठाने लगे हैं। उनको जाके कहना कि इमाम मूसा काज़िम फरमा रहे ये सिर्फ मेरा हक है कि मेरा जनाजा 4 मजदूर उठाए। खुदा आपको कभी किसी गम में ना रुलाए। परवरदिगारा, जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किया उनके अजाब में इजाफा फरमा, और उनको जहन्नम के असफल साफिलीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार, हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अवान व अंसार में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफ़ियत और रहमत करार दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, इस वक्त जो परेशानी के बादल छा रहे हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस कोरोना वायरस की और तमाम बीमारियों से सबको महफूज व मसून फरमा। हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।